Good morning, students. In this video, we will discuss some important identities of trigonometry. So, the first one is sine A plus B equals to sine A cos B plus cos A sine B. So this identity is the first one, and the second one is sine A minus B equals to sine A cos B minus cos A sine B. दिस इज द सेकेंड वन. देखिए फर्स्ट और सेकेंड सेम है. यहां अगर प्लस है सो यहां भी प्लस, अगर यहां माइनस है सो यहां माइनस. साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी. देखिए यहां भी साइन ए कोस बी, यहां कोस ए साइन बी, यहां भी कोस ए साइन बी, बट द डिफरेंस इज ओनली विद सिंबल प्लस एंड माइनस. सो अगर यहां प्लस है सो यहां भी प्लस, और यहां माइनस है तो यहां भी माइनस. ओके. द थर्ड वन इज कोस A plus B. So cos A plus B equals to cos A cos B minus sin A sin B. Okay. The fourth one is cos A minus B. So that is cos A cos B plus sin A sin B. The fifth one is tan A plus B, so it is equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. The sixth one is tan A minus B equals to tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. These are the 6 identities. These are very important to find out the angles of various trigonometric functions. Suppose now first consider these angles. We know the values of 0 degree for various trigonometric functions. जैसे हमें sin 0 की वैल्यू पता होती है 0, cos 0 की पता होती है 1, tan 0 की 0, कोट 0 की इन्फिनिटी. ठीक है. सेक 0 की हमें पता होता है 1, एंड कोसेक 0 की हमें पता होता है इन्फिनिटी. सिमिलरली वी नो दैट द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री फॉर वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन 30, कोस 30, टेन 30, इनकी वैल्यू भी हमें पता है, हम 10th में स्टडी कर चुके हैं. उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ओके. सो इनकी वैल्यू तो हमें पता है. नाउ सपोज हमें इनके बीच में कहीं वैल्यू है. सपोज हमें 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके. कितने की? 45 डिग्री की. अगर मैं बात करूं मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 45. सो अगर 45 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है या मुझे 75 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके. सो इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज we need to find out the value of sine 15 degree. Sine 15 degree. So अब देखिए कि जो 15 डिग्री है, 15 डिग्री, वो क्या इनके ये जो एंगल्स हमें गिवन है, these angles we know, इनके कॉम्बिनेशन से हम 15 डिग्री को जनरेट कर सकते हैं क्या? यस. वी नो 15 डिग्री इक्वल्स टू इन्हीं के कॉम्बिनेशन से. We know that 15 degree is 45 minus 30. 45 minus 30 is 15 degree. Okay. So this 15 can be written as sine 45 minus 30 degree. Sine 45 minus 30 degree. Now apply one identity from this one. देखिए
अगर मैं इसको अप्लाई अज्यूम करता हूं, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, 45 is A and 30 is B, then it becomes sin A minus B. So we know that sin A minus B equals to sin A cos B minus cos A sin B. So यहां हम अप्लाई कर देंगे बाय दिस आइडेंटिटी, ये वाली जो आइडेंटिटी है यहां हम अप्लाई करेंगे, बिकॉज ये और ये सिमिलर है। साइन A की वैल्यू 45 माइनस वैल्यू ऑफ B इज 30 डिग्री, सो इट बिकम्स, देखिए साइन ए, सो साइन ए मीन्स 45 डिग्री, कोस बी, सो कोस बी मीन्स 30 डिग्री, माइनस कोस ए, सो कोस ए मीन्स 45 डिग्री, एंड साइन बी, बी मीन्स 30 डिग्री. So by the use of second identity, this can be written as like this. Okay. Now we know that the value of sine 45 is 1 by root 2 into cos 30 is a root 3 by 2 minus cos 45 is 1 by root 2 into sine 30. Sine 30 is 1 by 2. So it becomes, देखिए एलसीएम हमारा, it becomes रूट 3, 1 into root 3 upon 2 root 3, root 2 into 2 root 3 minus 1 into 1 1 upon 2 into root 3 2 into root 2 2 root 2. So यहां पे अगर हम एलसीएम देखें then it becomes 2 root 2 and numerator is root 3 minus 1. So this is the value of sine 15 degree. You can simplify. This answer is correct. अगर आप इसको आगे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं then multiply with 2 root 2 in numerator and denominator. So 2 root 2 upon or you can say that you can write the value of root 3. Root 3 is 1.73 minus 1 upon, this is the 2 into, and we know that the value of root 2 is 1.41 like this. Now simplify this, so we get 0.73 upon 2, 2 4s are 8 and 2 1s are 2, this one. So 73 upon 282. So we get the value in decimal. So इसको आप सोल्व करें, so आपको जो है sin 15 की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी. So यहां तक this is the correct value of sin 15. ओके, आगे अगर आप सोल्व करते हो सो करो तो ठीक है, अदरवाइज यहां तक भी जो आपका आंसर है this one, this is correct. Okay. Similarly, you can find the value for cos 15. You can find out the value for cos 15. Cos 15 can be written as cos 45 minus 30. Okay. So this treats as a A and this treats as a B. So this is equal to identity number 4, cos A minus B. So यहाँ cos 15 की अप्लाई करने के लिए हम जो फोर्थ आइडेंटिटी है वो अप्लाई करेंगे, मींस कोस ए कोस बी प्लस साइन ए एंड साइन बी. इसको हम सोल्व करेंगे जैसे हमने इसको सोल्व किया है और हमें जो है कोस 15 का जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा. ओके, नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan 15. अगर मैं बात करूं tan 15, so tan 15 can be written as if we find out the value of tan 15, so it can be written as tan 45 minus 30 डिग्री. so ये जो है ये हमारा सिक्स्थ वाला जो है इससे मैच हो रहा है. देखिए tan a की जगह 45 माइनस b की जगह 30, so it can be written as tan a means tan 45 minus tan b, so tan 30 upon 1 plus tan A tan B, so tan 45 okay into tan 30 degree, tan 30 degree. Now it can be written as
tan 45 means 1 minus tan 30 means 1 by root 3 upon 1 plus tan 45 means 1 into 1 by root 3. Now LCM of the numerator is root 3, so it can be written as root 3 minus 1 upon LCM of denominator is root 3, and now it can be written as root 3 plus 1. ये और ये हमारा कैंसिल आउट, so we get root 3 minus 1 upon root 3 plus 1. This is the value of tan 15. अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो जो हमारा डेनोमिनेटर है उसका जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे. सो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 से हमने मल्टीप्लाई किया, देन रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1, सो इट कैन बी रिटन एज रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, and here a plus b and a minus b means a square minus b square, so 3 minus 1, so it can be written as, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे then we can write here root 3 minus 1 whole square upon 2. So this is the value of tan 15. So in this way we can find out the value of sin 15, cos 15 and tan 15. Suppose now you have to find out the value of cosec 15. Find out the value of cosec 15. So cosec 15 का तो हमारे पास इसमें आइडेंटिटी नहीं लिखी हमने. We don't know the identity of cosec a minus b. So देखिए cosec 15 can be written as 1 upon sin 15. 1 upon sin 15. Okay, so cosec 15 can be written as 1 upon sin 15. Now it can be written as 1 upon sin 15, and we know that the value of sin 15 is this one, root 3 minus 1. So root 3 minus 1 upon, or you can say that देखिए 1 upon में है मीन्स जो साइन 15 की वैल्यू है उसको हम इंटरचेंज कर देंगे, सो इट बिकम्स 2 रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस 1. जो नीचे वाली जो डेनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करने के लिए यहां तक भी आपका करेक्ट है, और अगर आप इसको रेशनलाइज करते हो जैसे कि हमने यहां किया, देखिए रूट 3 माइनस 1, रूट 3 प्लस 1, इसको रेशनलाइज किया मीन्स जो इसका न्यूमिनेटर है या सॉरी जो इसका डेनोमिनेटर उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, सो वी गेट हियर 2 रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, रूट 3 प्लस 1, सो स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 1 वी गेट 2, सो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, देन वी गेट रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस 1. So this is the value of cosec 15. This is the value of cosec 15. So in this way you can find out the value of sec 15. So sec 15 equals to 1 upon cos 15. Cos 15 की वैल्यू देखिए यहां हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, सो हमें cos 15 की वैल्यू मिलेगी, सो 1 upon cos 15 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, so that will be the value of sec 15. Now we have to find out the value of cot 15. So cot 15 is 1 upon tan 15, and tan 15 is this one. So cot 15 is reverse of this, means 2 upon root 3 minus 1 and whole square of this. This is the value of cot 15. So in this way we can find out the values of 15 degree for various angles. Okay, now let's find out the value of 75 degree. Suppose you have to find out the value of cos so you have to find out the value of sine 75 degree. So 75 can be written as sine 30 plus 45. Okay, so 30 plus 45 is 75, and we know that the value of sine 30 डिग्री में भी हमें जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू पता होती है, और जो 45 डिग्री है उनकी भी वैल्यू पता होती है, जैसे हमने 10th में जो टेबल बनाई थी.
So this is the value of A and this is the value of B. Now apply the identity. So यहां पे अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो है, फर्स्ट आइडेंटिटी वो यहां पे अप्लाई होगी, साइन A प्लस B. सो इट कैन बी रिटन एज साइन A cos B plus cos A sin B. So now it can be written as sin 30 is 1 by 2 cos 45 1 by root 2 plus cos 30. Cos 30 means you can say that root 3 by 2 into 1 by root 2 sin 45. Now LCM is, it can be written as 2 by root 2 plus root 3 by 2 root 2. So LCM is 2 root 2. So 1 plus root 3. So this is the value of sin 75. Similarly, you can find out the value of cos 75. It can be written as cos 30 plus 45. Okay. Or first of all, you can find out the value of cosec 75. So cosec 75 is 1 upon sin 75. And we know that the value of sin 75 is this one. So value of cosec 75 is 2 root 2 upon 1 plus root 3. Now let's find out value of cos 75. So cos 75 can be written as cos 30 plus 45. So this treat as A and it will treat as B. So now cos A plus B. So देखिए cos A plus B, ये रहा हमारे पास cos A cos B minus sin A sin B. So it can be written as cos A cos B minus sin A sin B. So equals to cos A cos 30. Cos 30 means root 3 by 2 into cos 45. Cos 45 is 1 by root 2. Now minus sin 30 is 1 by 2 and sin 45 1 by root 2. If we simplify these, we get 2 root 2 LCM and here we get root 3 minus 1. So this is the value of cos 75. Now sec 75. Sec 75 is 1 upon sec 75 and 1 upon cos 75. And value of cos 75 is this one. So sec 75 will be 2 root 2 upon root 3 minus 1. Okay, this is the value of sec 75. Now if we have to find out the value of tan 75, so tan 75 can be written as tan 30 plus 45. So यहाँ पे अगर मैं देखूं, so देखिए हमारा जो है फिफ्थ जो आइडेंटिटी है उससे मैच हो रहा है. So it can be written as tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और हम जो हमारा tan 75 है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सिंप्लीफाई करके. Similarly, if you have to find out the value of cot 75, so equals to 1 upon tan 75. Okay, so tan 75 की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, उसका रिवर्स कर देंगे. That will be the value of cot 75. So these identities are very helpful to find out the values of various angles such as sin 15, sin 75, like this. Some more angles we can find out with the help of these angles. Suppose you have to find out the value of sin 105. Suppose you have to find out the value of sin 105. So there are many ways to find out the angle of 105. So you can break it into pi by 2 case. So it can be written as sin pi by 2. Okay, first break it into sin pi by 2. Pi by 2 के केस में अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं, then sin pi by 2 means 90 डिग्री. So 90 डिग्री में हम क्या ऐड करें, then we get 105. So we have to add 15 डिग्री. क्या ऐड करना होगा मुझे, 15 डिग्री. नाउ देखिए, दिस इज द केस ऑफ पाई बाई 2, दिस इज द केस ऑफ पाई बाई 2. सो हमारा साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोस में. देखिए पाई और पाई बाई 2 का केस वी हैड आई हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर्स.
So this is the pi by 2 case. So pi by 2 का केस होता है तो sin will be converted into cos. So now angle is 15 degree. Now come for the quadrant. So pi by 2 means 90 degree. Then plus 15 degree. So plus angle है means we have to move in forward direction. So हम कहाँ आ गए? सेकेंड क्वाड्रेंट में. And in second quadrant sin is positive. In second quadrant sin is positive. So ये हमारा positive रहेगा. So it is cos 15. Now you can find out the value of cos 15. Cos 15 can be find out as we saw previously. Then cos 15 can be written as cos 45 minus 30. So now ये हमने अभी जस्ट इससे पहले किया है. cos 15 को इसमें ब्रेक करके वैल्यू फाइंड आउट की है. सो उस मेथड से आप cos 15 की जो है वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे. और सेकंड वन, अगर इसी को मैं पाई बाय 2 के केस में ब्रेक ना करके अगर मैं इसको ब्रेक करूं, साइन 105 मीन्स यू कैन सी 60 प्लस 45 सॉरी 105 यस 60 प्लस 45 डिग्री. सो 60 प्लस 45 डिग्री इज 105. सो नाउ it will treat as A and it will treat as B. So sin A plus B. So देखिए जो हमारा फर्स्ट है वो इससे मैच हो रहा है. sin A plus B equals to sin A. So it can be written as sin A cos B plus cos A sin B. Okay, sin A cos B plus cos A sin B equals to sin A plus B. Now the value of sin 60 is root 3 by 2. Cos 45 is 1 by root 2 plus cos 60. Cos 60 is we know that 1 by 2 and sin 15. Sin 15 is we know that 1 by root 2. Okay, so these are the values for these trigonometric values. Now it can be written as root 3 by 2 root 2 plus 1 by 2 root 2. So LCM हमारा होगा 2 root 2. Now root 3 plus 1. This is the value of sin 105. Okay, similarly you can find out the value of cos 1 sin 120. Similarly you can find out value sin 120. So 120 को भी हम या तो पाई बाय 2 के केस में ब्रेक करें प्लस 30 डिग्री. ओके, या इसी को हम ब्रेक कर लें. देखिए अगर पाई बाय 2 के केस में ब्रेक किया है, सो पाई बाय 2 का केस है, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में 30 डिग्री. और कौन सा एंगल हमारा, यू नो दैट दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव. सो कोस 30 की वैल्यू इज रूट 3 by 2. सो ये तो हमने डायरेक्ट ही अप्लाई कर दिया यहां. दिस इज इजी. सिमिलरली सपोज आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 60 प्लस यू कैन से 0 30 45 60 120 then 105. Okay, so in this way you can find out the values of these. So ये जो है आपको इसी में अभी जो by use of these identities, इन identities की हेल्प से आप फाइंड आउट कीजिए वैल्यू sin 15, cos 15, tan 15. सो अगर हमारे पास एक बार sin 15 की आ गई, देन वी कैन फाइंड आउट cosec 15, वी कैन फाइंड आउट sec 15. हमारे पास cos की वैल्यू आ गई, देन वी कैन फाइंड आउट sec 15. tan की वैल्यू आ गई, देन वी कैन फाइंड आउट cos 15. सिमिलरली इसी के साथ आप जो है एंगल 75 105 इन तीनों के लिए आपको ये एंगल्स की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है फॉर ऑल दी 6. जैसे cos 15, cos 75, cos 105, tan 15, tan 75, tan 105, cot 15, cot 75, cot 105, sec 15, sec 75, sec 105, cosec 15, cosec 75 एंड cos 105. इनकी वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करनी है. उसके अलावा कुछ और आइडेंटिटीज हैं, दोज आर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो
जो हमारा 12th का जो सिलेबस है, या हम बात करें कि जो हमारा 11th का सिलेबस होगा, उसमें बहुत जगह ये जो आइडेंटिटीज हैं ये अप्लाई होंगी. सो वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वन इज sin 2a. So sin 2a can be written as 2 sin a cos a. Okay, sin 2a is 2 sin a cos a. At one is cos 2a. So it can be written as, first one is 2 cos square a minus 1. Second one is 1 minus 2 sin square a. And the third one is cos square a minus sin square a. So these are the identities, very very important. देखिए ये हमारी जो आइडेंटिटीज हैं, ये अगर आपको लास्ट जो हमने 6 आइडेंटिटीज लिखी थी, अगर वो आपको अच्छे से याद है, सो दिस कैन बी डेराइव फ्रॉम दोज, बाय दोज आइडेंटिटीज वी कैन डेराइव दीज आइडेंटिटीज. जैसे सपोज मुझे अप्लाई करना है क्या, साइन 2a की आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है. सो देखिए साइन 2a कैन बी रिटन एज साइन a प्लस a. ओके, साइन a प्लस a. सो दिस इज, सपोज ये हमारा a है और ओके साइन a प्लस a, एंड नाउ वी नो दैट साइन a प्लस b इक्वल्स टू, जो पिछला हमारा आइडेंटिटी है उससे वी नो दैट साइन a प्लस b इक्वल्स टू साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b. ओके, सो देखिए इस आइडेंटिटी में और इसमें क्या डिफरेंस है, यहां a की जगह a है, यहां जो b है उसकी जगह a है. ओके, सो अगर मैं ये जो b आइडेंटिटी है यहां, इसमें b की जगह भी a पुट कर दूं, सो इट कैन बी रिटन एज साइन a प्लस a. देखिए ये a तो वही a है, बट इस b की जगह अगर मैं a पुट कर दूं, बिकॉज a प्लस a हो जाएगा, सो इसको मैंने a पुट किया, सो इस राइट हैंड साइड में भी जो b है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, a से. सो साइन a, देखिए a में तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने a में कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ जो b है उसको मैंने रिप्लेस किया किससे, a से. सो साइन a एंड कोस, ये b भी रिप्लेस हो जाएगा a से, प्लस कोस a, और ये भी किससे रिप्लेस हो जाएगा, a से. ओके, सो देखिए साइन a कोस b, साइन a कोस a, और दीज टू आर इन मल्टीप्लाई. सो इसको भी हम साइन a कोस a लिख सकते हैं. नाउ साइन a कोस a प्लस साइन a कोस a इक्वल्स टू 2 टाइम्स, देखिए सेम वैल्यू अपीयर 2 टाइम्स, सो इट कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ द वैल्यू. सो इट कैन बी रिटन एज 2 एंड साइन a कोस a. सो साइन a प्लस a मीन्स दिस वन. सो साइन 2a इक्वल्स टू साइन a प्लस a, और साइन a प्लस a को हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करें, देन वी गेट 2 साइन a कोस a. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वन. सिमिलरली जो हमारा सेकंड है ये वाला, सो इसको देखिए कैसे डेराइव करेंगे. देखिए वी नो दैट कोस 2a कैन बी रिटन एज कोस a प्लस a, एंड वी नो दैट कोस a प्लस b इक्वल्स टू कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b. नाउ कोस a ये हमारा a ही है, और इस b को भी मैं रिप्लेस कर देता हूं a से. सो इस b को रिप्लेस करेंगे देन RHS में हमारा जो b है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, a से. सो इट कैन बी रिटन एज कोस a, b हमारा रिप्लेस हो जाएगा a से, माइनस साइन a, और b हमारा रिप्लेस हो जाएगा किससे, a से. सो कोस a इंटू कोस a कोस स्क्वायर a, माइनस साइन a इंटू साइन a साइन स्क्वायर a. सो देखिए ये तो हमारा cos a प्लस a मीन्स यू कैन से दैट cos 2a. सो ये तो हमारा हुआ, ये जो थर्ड वन है ये वाला. नाउ cos स्क्वायर थीटा, देखिए नाउ सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1. सो अगर मैं cos स्क्वायर a को रिप्लेस करूं
सो कोस स्क्वायर ए कैन बी रिटर्न एज, ये साइन स्क्वायर चेंज होके उस साइड जाएगा, देन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. सो अगर यहां पे आप रिप्लेस करेंगे, सो कोस स्क्वायर ए कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. सो ये तो मैंने कोस ए की जगह रिप्लेस किया, माइनस साइन स्क्वायर ए. सो दिस इज 1 एंड माइनस साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए. देखिए 2 टाइम्स माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए मीन्स 2 साइन स्क्वायर ए. सो ये हमारा जो सेकंड वन है वो वाला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए किसकी वैल्यू, कोस 2a की वैल्यू. सिमिलरली अगर ये जो हमारी आइडेंटिटी है इससे मैं कोस स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट करूं, देन वी गेट 1 माइनस, ओके, और यू कैन फाइंड आउट साइन स्क्वायर ए. सो साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस, साइड चेंज होके 1 माइनस कोस स्क्वायर ए. सो यहां पे जो आपकी जो वैल्यू है वहां पे साइन स्क्वायर ए की जगह आप वैल्यू ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, देन 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए. So now this is 1 minus 2 into 1, so we get minus 2. Okay, so 1 minus 2 into 1 minus cos square, then minus into minus, देखिए 1 into 1 sorry minus into minus we get plus, minus into minus plus, and 2 into cos square a we get 2 cos square a. सो देखिए यहां से ये हमारे पास 2 कोस स्क्वायर ए एंड प्लस 1 एंड माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1. सो इन दिस वे वी 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ कोस 2a. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोस 2a. नाउ द नाइन्थ आइडेंटिटी, दैट इज ninth is tan 2a equals to 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए. सो ये भी हम उसी से फाइंड आउट कर सकते हैं. tan 2a कैन बी रिटन एज tan a प्लस a एंड वी नो दैट tan a प्लस b इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. ओके, सो tan 2a बनाने के लिए ये जो b है इस b को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, बाई a. सो यहां भी हमारा b रिप्लेस हो जाएगा बाई a और ये b भी रिप्लेस हो जाएगा बाई a. सो tan a प्लस tan a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a tan स्क्वायर a. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 2a. नाउ these values are also useful to find out the value of various angles. okay, जैसे मान लीजिए आपको 60 की वैल्यू पता है. देखिए वी नो आपको अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 120 की, ओके, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, साइन 120 की, देन यू कैन राइट इट साइन 2 into 60. You can write it sin 2 into 60 because 2 into 60 is 120. Okay, now this is equal to this one. देखिए sin 2 and value of a is 60 degree. So it can be written as 2 sin a cos a. ये आइडेंटिटी हमारी अप्लाई होगी. जो हमारी a है उसकी वैल्यू 60 डिग्री. So it can be written as 2 sin 60 degree cos 60 degree. So 2 sin 60 means root 3 by 2. Cos 60 means 1 by 2. So 2 से हमारा एक कैंसिल हुआ. Then we get root 3 by 2. So this is the value of sin 120 by this one. Similarly you can find out cos 120, tan 120. और आगे जो हमारे एंगल्स हैं वो भी हम इन आइडेंटिटीज की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज. जो 9 आइडेंटिटीज हैं जो हमने अभी आज के जो वीडियो है उसमें की हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू फाइंड आउट द वेरियस वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो आपको ये जो है तैयार करनी है, जो 9 आइडेंटिटीज है अच्छे से समझना है.
सपोज इन्हीं आइडेंटिटीज की हेल्प से यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री। ओके, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन 22.5 डिग्री। सो देखिए हमें जो है 22.5, अब हमें 22.5 जो है एंगल की किसी की वैल्यू नहीं पता होती, लेकिन हमें पता होता है 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सपोज यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री एंड वी नो द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। So any relation with this angle 22.5 is related to this one. This angle is related to this one because 45 degree is double of 22.5 degree. Okay, it is double of 22.5. So इसमें से वो एंगल देखिए जहां साइन में इसका डबल, सपोज अगर मैं इसको ए अज्यूम करूं, सो इसका डबल मीन्स ऐसा आइडेंटिटी फाइंड आउट कीजिए, फाइंड आउट सच टाइप ऑफ आइडेंटिटीज आउट ऑफ दीज विच कंटेन्स ए एंड 2a, जो a और 2a दोनों रखें विद साइन। ओके, सो देखिए ये वाली जो आइडेंटिटी है हमारी यहां पे है, हमारे पास 2a भी है, साइन ए भी है, बट कोस ए यहां पे हमारे पास देखिए अगर मैं a को 22.5 लूं, सो 2a हो जाएगा हमारा 45, सो ये हमारा बन जाएगा साइन 45, सो इसकी वैल्यू मेरे पास है। देन 2 साइन a, ये हमारा बन जाएगा 2 साइन 22.5, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, इनटू कोस 22.5, सो इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है। ओके, सो ये एक बार अप्लाई नहीं होगा। नाउ कम टू दिस वन, दिस इज कोस 2a मींस कोस 45। ओके, इसकी वैल्यू मेरे पास है। देन 2 कोस स्क्वायर है, कोस ए मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे साइन ए की रिक्वायर्ड। सो देखिए दिस वन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ओके, दिस वन, सो यहां मेरे पास मैं अगर ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करता हूं, सिंस, सो यहां पे सपोज दिस इज ए, 22.5 is a, so since we know that since cos 2a equals to 1 minus 2 sin square a, 1 minus 2 sin square a, so it can be written as cos 2 into a means 22.5 equals to 1 minus 2 sin square 22.5. Okay, so it can be written as cos 22.5 into 2, it can be written as cos 45 equals to 1 minus 2 sin square 22.5. Okay, now cos 45 is 1 by root 2 equals to 1 minus 2 sin square 22.5. so side change होगा, ये वैल्यू हमारी इस साइड, then 2 sin square 22.5 इक्वल्स टू, ये साइड चेंज होगा, सो 1 माइनस 1 बाय रूट 2। देखिए ये हमारा साइड चेंज हुआ, पॉजिटिव बन गया, ये साइड चेंज हुआ नेगेटिव हो गया। सो इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस। नाउ इसको अगर हम सोल्व करें, देन एलसीएम इज रूट 2, सो रूट 2 माइनस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। नाउ साइन स्क्वायर 22.5, ये जो 2 है ये हमारा साइड चेंज होकर डिवाइड में जाएगा, सो रूट 2 माइनस 1 upon 2 root 2. This is the value of sine square. This is the value of sine square. Now sine 22.5 can be written as, जहां से स्क्वायर एलिमिनेट होगा, then root 2 minus 1 upon 2 root 2. This is the value of sine 22.5. अच्छा, one more question. अगर यहां से स्क्वायर एलिमिनेट होगा, देखिए कोई भी हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सपोज कोई भी 5 है, देन x हमारा होता है रूट 5 एंड प्लस माइनस। ओके, क्या सिंबल आता है? प्लस माइनस। बट हियर वी डोंट यूज प्लस माइनस सिंबल। व्हाई? बिकॉज 22.5 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए 22.5 जो हमारा है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव।
ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव। सो जो इसकी वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसलिए हमने सिर्फ पॉजिटिव सिंबल लिया है, नेगेटिव सिंबल यूज नहीं लिया है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ sin 22.5. Similarly, you can find out value of cos 22.5. ओके, सो cos 22.5 के लिए आप जो है ये वाली जो आइडेंटिटी है ये अप्लाई करेंगे। सो एक तो आपको ये करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन cos 22.5. नाउ कम टू दिस वन। सो एक आप सपोज, हाँ ओके, ये हम आपके पास वैल्यू आ गई। सो अगर अब आपको वैल्यू कोसेक 22.5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, सो दैट वैल्यू विल बी, नाउ that value will be reverse of this one, reverse of this one. So it can be written as, देखिए reverse of this one can be written as 2 root 2. So 2 root 2 upon root 2 minus 1, root 2 minus 1 and root of this. So this is the value of cosec 22.5. This is the value of cosec 22.5. Similarly, आपको cos की जब वैल्यू हो जाए, so you can find out sec 22.5. जो रिवर्स हो जाएगा 1 अपॉन cos 22.5 का, एंड cos 22.5 का आप इस आइडेंटिटी से फाइंड आउट करेंगे। नाउ सपोज आपको फाइंड आउट करना है tan 22.5. सो tan 22.5 के लिए आप ये अप्लाई करेंगे। सो जो a है, a इज आपका 22.5. सो इट कैन बी रिटन एज tan 45. It can be written as tan 45 equals to 2 tan 22.5 upon 1 minus tan square 22.5. Okay. Now the value of tan 45, देखिए tan 45 is 1. So this is 1 equals to 2 tan 22.5 upon 1 minus tan square 22.5. So इसके अपॉन में 1 by cross multiply this by this one, or you can say multiply this one. So it can be written as 2 tan 22.5 equals to multiply this one. So 1 minus tan square 22.5. ओके, इसको हम लिख लेंगे, ये नेगेटिव सिंबल इस साइड आएगा, देन इट कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर 22.5 इक्वल्स टू सॉरी प्लस 2 tan 22.5 एंड माइनस 1 इक्वल्स टू 0. एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. सो यहां पे जो x है दैट इज tan 22.5. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan 22.5. सो बाय धराचार्य फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट tan 22.5 इक्वल्स टू माइनस b. सो b इज 2. सो माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर. सो b स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4 इंटू a इज 1. मल्टीपल ऑफ tan स्क्वायर 1 into c is minus 1, so into minus 1 upon 2a, so 2 into 1. Now it can be written as minus 2 plus minus root 4 minus into minus plus, so 4 plus 4 8 upon 2. Okay, now it can be written as, it can be written as minus 2 plus root 8. Root 8 can be written as 4 into 2 का root, and 4 बाहर आ गया, so 2 root 2. So it can be written as 2 root 2 upon 2 minus 1 equals to, देखिए 2 हमारा कॉमन आ गया, then we get minus 1 plus minus root 2. Okay, so upon 2, ये हमारा कैंसिल हो गया. अब देखिए रूट 2 इज ग्रेटर देन माइनस 1, सॉरी रूट 2 इज ग्रेटर देन 1. सो यहां पे नेगेटिव सिंबल नहीं आएगा बिकॉज
वही हमारा एंगल इज 22.5 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव। हेंस tan 22.5 डिग्री इज 1 प्लस √2. This is the value of tan -1. You can say √2 -1. ये प्लस का लिया √2 and -1. So this is the value of tan 22.5. Similarly, if we get tan 22/2, then we can find out cot 22.5, that is 1 by tan 22.5. So इसका अपॉन में 1 upon √2 -1. This is the value of cot 22.5. So in this way we can find out various values of trigonometric function for different angles.